Hello student, today I am going to teach you painting chapter number 6 part 3 Impressionism. Still life the onion. टाइटल है Still life with onion. एन आर्टिस्ट है पॉल सेजा एंड मीडियम है ऑयल ऑन कैनवस. पीरियड 1895 to 1900. Style post impressionism. Collection Messi da Orsay, Paris. Paul Cézanne was a post-impressionist who explored new meanings of expressions. His paintings show simplifications of natural forms. According to him, everything in nature could be reduced to solid geometrical such as a cone, cylinder and cube. He tends to turn recognized or real form into structural impressions. Thus he was said to start abstract painting, which later gave birth to Cubism. He is known as a father of Cubism. Whether it was his still life, landscape, portrait or familiar humble folk, all his paintings convey intense study of the selected. This is the picture, still life with onion. Subject. In his painting, Still Life with Onion, he rendered form by interpreting the light and shade of an object in varying tone of same color. He used plain color stroke to depict color relations. His composition shows perfect vertical and horizontal break with interesting arrangement of three-dimensional form in space. With the use of red and yellow, the vibrations of light is reproduced, while sufficient quantity of blue and white draped at the feeling of air and space. Cézanne would be always regarded as the father of modern painting, as his style formed the bridge between the late 19th century Impressionism and the early 20th century modernism of Cubism. पॉल सेजा के बारे में हम कहते हैं ये जो प्रभाववादी युग का कलाकार था और जिसने अपनी अभिव्यक्ति के लिए नए साधनों की खोज की. उसके चित्रों में जो प्राकृतिक या हम जिसे नेचर कहते हैं आकारों की सरलता एवं सहजता दिखाई देती है. उसके अनुसार प्रकृति में प्रत्येक वस्तुओं को जो है रोशनी में या ज्योति में आकार के ठोस आकार जैसे सिलेंडर है और जो त्रिकोण है और मिक्सअप के रूप में बदलते जा सकते हैं. वह सभी पहचाने जाने वाले एवं वास्तविक आकारों को अपने जो संरचना या उसके ढांचे में बदल देना चाहता था. उसे जो है चित्रकला को शुरू करने वाले कलाकार के रूप में जाना जाता है. हम कह सकते हैं कि वो फादर ऑफ क्यूबिज्म है, जिन्होंने शुरू किया कलाकारी एक नए तरीके से. इसी काल से जो घनावाद का काल कहा सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूबिज्म. उसके चित्र जो है स्टिल लाइफ विथ ऑनियन में जैसे रंगों के विभिन्न रंग है, उसमें बहुत सारे रंगों को मिलाया गया है और एक साथ में मिलाया गया है. किसी वस्तु में प्रकाश और छाया को नए अर्थ देकर विभिन्न रूपों को चित्रित किया है. रंगों के जो आंतरिक या अंदर को एकदम मिक्सअप किया गया है संबंधों को दर्शाने के लिए. उसने साधारण रंगीन स्पर्श को
प्रयोग किया है, रंगीन कलर को चुना है। और रंगों के हम इसके कहेंगे कि उसकी जो कलाकृति में एक सही और सीधा और समतल स्तर पर जो त्रिकोण आकार का सुंदर मिश्रण हमें मिलता है देखने को। लाल और पीले रंगों से प्रकाश में एक जो है कंपन जैसा हो जाता है। और इसी प्रकार नीले और तथा सफेद रंगों के कपड़े की भी जो है वहाँ पे उपस्थिति ऐसे दिखाई देती है कि जैसे हवा है, तथा आंतरिक अभ्यास कराते हैं कि उसमें दिखाई देता है कि हवा चल रही है। और सेजा को हमेशा वर्तमान काल का कहते हैं कि शुरुआत की है उसने वर्तमान काल की। और क्योंकि इसकी जो कला शैली है वो 19वीं सदी के अंत और जो प्रभाववादी की शुरुआत में माना जाता है कि उसने शुरू की है। नेक्स्ट है स्टेरी नाइट। स्टेरी नाइट के लिए हम लोग ये देखेंगे पहले। स्टेरी नाइट जो है इसका टाइटल है, और विंसी वेन गोग जो इसके मेन आर्टिस्ट है। विंसेंट वैन गोग was a Dutch painter. Through his painting, life was full of misery, poverty, and discouragement. He was a decided painter. In all of Van Gogh painting, color carried the greater importance than just the expression of the form. He trained to depict natural scenes in terms of colors, not light and shade. In his painting Starry Night, there is a night sky filled with stars. His paintings show well balanced composition with harmony of colors. The painting is composed with various elements like a swirling cloud, glowing stars, and a bright moon. In the background below the hills lie a small town with a church and small buildings. To the left of the painting there is a massive dark structure depicting top of an isolated cypress trees. The stars in the night sky are surrounded with their own orbit of light. जो विंसेंट वेन जो है गोग के बारे में बताया जाता है कि वो डच कलाकार थे, और उसके जीवन में परेशानियां, गरीबी और निराशा ही अधिक थी, लेकिन वो एक अच्छा तथा समर्पित चित्रकार था। उसके तमाम चित्रों में आकार के वर्णन का नहीं बल्कि जो रंगों को बहुत महत्व दिया गया है। वो प्रकृति के जो दृश्य हैं उनको बहुत सुंदरता से उन्होंने बनाया है, और ना कि प्रकाश और एक छाया के द्वारा। वो सिर्फ लाइट और शेडो पे ही नहीं और केवल आकार पे ही नहीं, लेकिन वो प्रकृति को बहुत महत्व देते थे। और उसके चित्र में स्टेरी नाइट में एक पूरा आकाश दिखाया गया है जिसमें सितारे हैं, सितारों से भरा हुआ आकाश है। उसके चित्रों में सभी रंगों को एक साथ पे इस्तेमाल किया जाता है, मिलाकर रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। और चित्रों में बहुत ही, जैसे हम बोल सकते हैं, बादल दिखाई देते हैं, झिलमिलाते सितारे और चंद्रमा दिखाई देता है, पहाड़ और एक कस्बा या बोल सकते हैं नगर दिखाई देता है, चर्च दिखाई देता है और छोटी छोटी बिल्डिंगें दिखाई देती हैं। और चित्र के बाईं ओर अकेला एक पेड़ भी दिखाई देता है। ये स्टेरी नाइट का चित्र है। अगर हम ध्यान से इसमें देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि आकाश है और नीचे कुछ नगर है, वहां पे कुछ घर है, पहाड़ नजर आएंगे। This representation of the sky
keeps the weaver's eye moving about the painting. Following the cues, his starry night seems to be a whirlpool galaxy with the bold slabs of blue and white oil colors. This study of night sky led to convey his own inner conflict and sleepless night. Van Gogh had an original vision to depict the simplicity and actualness of expression. His other famous painting that made him one of the most outstanding painter are Sunflower, Potato Eater, Wheat Field and Crepes, his own self-portrait and his own bedroom. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने पेंटिंग्स के नाम लिए वो उनकी सबसे फेमस पेंटिंग्स में से है। और वैन गॉग ने जो है जो उनका स्टेरी नाइट, स्पेशली स्टेरी नाइट, वो बहुत ही फेमस उनकी पेंटिंग है। और बाकी की जो पेंटिंग है वो आउटस्टैंडिंग पेंटिंग्स है। स्टेरी नाइट की जो मेन हम देखते हैं, स्टेरी नाइट में मेन जो बात है उसमें नीले तथा सफ़ेद रंगों को बहुत ही गहरे तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और आकाश में जो है बहुत सारे तारे हैं, ये ऑलरेडी सारी चीज़ें मैंने बताया है। वैन गॉग बहुत ही सरल और संवेदनशील अभिव्यक्ति वाले व्यक्ति हैं और उनकी जो दृष्टि है या उनका जो देखने का तरीका है बहुत ही अलग है। वैन गॉग प्रसिद्ध कलाकार बनने में उनकी कुछ जो मुख्य पेंटिंग्स है, जहाँ जो मैंने नाम लिखा है यहाँ पे सनफ्लावर है, जिसको हिंदी में हम सूर्यमुखी कहते हैं। और ये सारी जो पेंटिंग्स है पोटैटो ईटर्स एंड व्हीट फील्ड, साइप्रस, तो उनकी ये सबसे खास पेंटिंगों में से है। सो स्टूडेंट्स, ये सारी पेंटिंग्स आपको याद रखना है और ये लेसन नंबर 6 यहाँ कंप्लीट होता है। अच्छी तरह से आपको ये लेसन रीड करना है। मैंने ऑलरेडी लेसन जो है दिया है, तो पूरे सभी लेसन पूरा आपको अच्छी तरह से हर पेंटिंग को रीड करना है और हर पेंटिंग्स के बारे में पूरा अच्छी तरह से लिखना है, क्वेश्चन आंसर्स। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।